micro. Yeah, so we'll start with the micro class. Okay, so we'll start with the micro class right now. Okay, so micro revision class will start. I'm sharing the screen. I hope all of you are present. Yes, yes. Yes, Krishna. Okay, so is this screen visible to you? माइक्रो का रिवीजन हमने अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है. इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Okay, okay. So yeah, we will quickly do a few topics. National income में it took a lot of time. So okay, so micro revision में अभी we will start with consumer theory. Maybe we'll start with a few basic topics of consumer theory. I'll give you a little bit explanation of all the topics, little bit, so that everything gets revised, and then we will do a few numericals on that topic. Okay, so what are the topics which I'm going to cover today? बहुत आसान topics है, but important है exam के लिए, for any of the examinations which you are appearing for. So first we have the own price elasticity of demand. We'll talk about this, do some numericals on this also. Okay, then we have own price elasticity and price elasticity same ही होता है, but I'm writing own over here for a specific reason which you are going to know after some time. Then we have the income elasticity of demand. We have the cross elasticity of demand. So we are going to discuss on this cross price elasticity. I'm sorry. Cross price elasticity of demand है. एंड लास्ट में हम फिर कुछ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. ज्यादा तो नहीं, आज हम वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन और कॉब्स डगलस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. लाइक we will actually discuss how to find the optimal bundles through this, and in the next class we are going to cover the other utility functions. Very important, it is a very important topic for your exam. Okay, so I hope you all are ready for this session. So let me start with the own price elasticity of demand. Okay. So own price elasticity of demand क्या होता है? Own price elasticity of demand को मैंने ED से डिनोट किया है. फटाफट से कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. It is the percentage change in quantity demand upon the percentage change in price. Okay. So this is what? Del Q by Q upon del P by P. This can be written as what? dq by dp, p by q. ठीक है. अच्छा, बहुत जगह हमें ये भी पूछा जाता है, जो इलास्टिसिटी है ना, उसको हम मार्जिनल चेंज अपॉन एवरेज चेंज भी कहते हैं. देखिए, मार्जिनल चेंज हुआ ना, इफ यू टेक p, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज dq by dp जो है वो q by p है, अगर हम p को नीचे रखते हैं. सो दिस इज मार्जिनल and this is average. I'm writing this specifically over here because in some numericals you are supposed to find the elasticity through this method also. So this is a marginal change upon the average change. You should be knowing this, okay? Because in the class, later in this class, there will be a numerical on this concept. It will become more clear to you, okay? So ये क्या है? Marginal change upon average change, okay? So I hope Navneet sir has already covered this. This is a revision. So I'm just revising the concepts and the numericals will be done.
सो मुझे आप एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे करके दिखाएं, ठीक है? You have to just a second if I mentioned it over here or not. Okay, is the question visible to all of you? Is this question visible to all of you? Okay. Okay, Trishla, it's visible. So आप मुझे इसका own price elasticity of demand इस function का निकाल के और 1 minute में या 2 minutes में बताएं जल्दी से, और आंसर मुझे बताएं क्या है. Then I'll do it for you. मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है. m क्या है? dx अपॉन ये क्या है? dpx इंटू पी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, ये आपको हिंट दे दिया है, आप मुझे फटाफट से बताएं, देन आई डू इट फॉर ऑल ऑफ यू. और एल्स आई सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट एंड देन आगे वाले न्यूमेरिकल्स में आपसे मैं करवाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ. सो इसमें ये डिमांड फंक्शन है, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है. ये वाला डिमांड फंक्शन आपका कहाँ पे आएगा? हम जब वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन करेंगे वहां पे आएगा. ठीक है, तो x का वैल्यू है m अपॉन 2px और उसमें y होता है m अपॉन 2py. आई थिंक यू हैव ऑल डन दिस थिंग. ओके, तो इसका आपको बोलेगा कि यूटिलिटी, आप इसका प्राइस इलास्टिसिटी निकालिए. यू हैव टू फाइंड द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दिस फंक्शन. सो we'll use this formula, we will use this formula. Okay, so dx upon dpx is what? We will differentiate it with respect to px. So ये नीचे है, so this will be equals to, just wait a second, this is equals to minus m upon 2px square. Okay, and px का वैल्यू क्या है? It is given, it is written as it is, and x क्या है? X is given as m upon 2px. Okay, ये समझ आ गया till here? अब हम क्या करेंगे? माइनस एम अपॉन 2px, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है. आई थिंक मैथ्स मैम ने डिफरेंशिएशन आपको करवा रखा है, तो ये कैंसिल हो गया. हमारा आंसर क्या आया? -1. सो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है? -1 है. ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं. आपको वैल्यू नहीं गिवन है, आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है जो कि हम ऑप्टिमल बंडल से निकालते हैं, और आपको बोलेगा इलास्टिसिटी निकालो. इज इट क्लियर? ओके, if it's clear, then I'll move on to the next question. What does this mean? A 1% increase in price leads to 1% decrease in quantity because of the minus sign. Elasticity is -1. Okay, अभी हम फटाफट से और एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स. ओके, देन हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाएंगे. प्राइस इलास्टिसिटी पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आया था, इसलिए मैंने डेलिबरेटली पिक किया है. ओके, I'll solve this for you because time अभी कम है. I cannot wait for you, and I want you to do it again at your house, at your home. Okay, again आपको करना है, ठीक है? I have deliberately picked up a numerical like this because it will give you a greater insight regarding the topic. Okay, so यहाँ पे क्या है? एक डिमांड फंक्शन है Q1, it intersects with another demand function Q2. There is a demand function Q1 which intersects with another demand function Q2 at price 10. ठीक है? And the second information which is given over here is that elasticity of demand for Q2 is 6 times, is what? 6 times larger than Q1. तो ये 6 times है of Q1, ठीक है? And it is 6 times of Q1. ठीक है ना? ये larger वाला मैं एक बार चेक कर लूंगी larger था या नहीं. 6 times larger than Q1 मतलब 6 times of Q1. Okay, elasticity of demand इसका ये है, ये important है. Find demand function for Q2. It is actually 6 times of Q1. Okay, now find the demand function of Q2. Okay, so we will quickly do the, is it visible now? ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट करने से आपका माइंड ओपन होगा. योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज गोइंग टू इंक्रीज थ्रू दिस. ओके, सो वील स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे आपका Q1 गिवन है which is equals to 50 minus P1. Okay,
और हमें क्या गिवन है, दैट एट प्राइस P is equals to 10. Okay, what happens is that Q2 and Q1 intersects. Okay, प्राइस एक ही रहेगा ना, तो Q1 is 50 minus 10, 40, और Q1 and प्राइस 10 में Q1 and Q2 इंटरसेक्ट करता है, सो Q1 is equals to Q2 is equals to 40. ठीक है, आप ये वाला न्यूमेरिकल फिर से घर पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. आई विल सेंड यू द PDF, सो डोंट गेट वरीड. ओके, तो हमने क्या, पहले हमारे को Q1 गिवन था, प्राइस गिवन था, प्राइस 10 है, उस प्राइस पे Q1 एंड Q2 इंटरसेक्ट करता है. सो वील पुट द वैल्यू ऑफ प्राइस which is equals to 10 in the demand function which is given here. It comes out to be 40, and because it intersects Q2 at that point, so Q1 and Q2 will be equal and it will be equals to 40. Now the second information which is given over here is that elasticity of demand for Q2 is 6 times elasticity of demand for Q1. ठीक है, वो हमें निकाल. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ Q2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज DQ2. आई नो इंटरनेट. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Am I audible? Am I visible to you, students? Okay. Okay. Okay, am I audible? Is it visible? The screen is visible? Okay. So we'll continue. I thought that there was a network issue. So, okay. So DQ2 by DPT, BT, just a second. DQ2 by DPT है elasticity of demand of Q2 into P2 by Q2. ठीक है, simple formula has been put, and this is what, 6 times the elasticity of demand of Q1, which can be written as dQ1 upon dP1 into P1 upon Q1. ठीक है, और हम ये ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं. Q1 is equals to, at यहाँ पे हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, at price 10 Q1 is equals to Q2 is equals to 40. Okay, now we will substitute this value of Q1 and Q2 in this equation. Okay, and also the value of P. At price 10 Q1 and Q2 are intersecting, so P1 and P2 भी 10 होगा. आप कंफ्यूज मत होना कि प्राइस वहां पे 10 है और P1 P2 10 कैसे होगा, because at that price only it is intersecting. So P is equals to P1 is equals to P2 is 10. Okay, so यहाँ पे हम DQ2 upon DPT लेंगे. P2 10 है, Q2 40 है, तो इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. यहाँ पे ये जो वैल्यू है गिवन, इसको DQ1 अपॉन DP1 ले लिया. यहाँ पे प्राइस 10 है और Q1 40 है. ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट और हमें क्या मिलता है, DQ2 अपॉन DP2 इज 6 DQ1 DP1. ठीक है ना, अब हम हमें पता है Q1 इज 50 माइनस P1. यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, सो DQ1 अपॉन DP1 क्या है, इट इज -1. लाइकवाइज हम, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा DQ2 by DP2. ठीक है, तो ये -6 आ जाएगा DQ2 by DP2. तो जैसे यहाँ पे हमारी इक्वेशन में ये -1 गिवन है, ये यहाँ पे -1 आ रहा है ना इसके,
तो सिमिलरली व्हाट विल हैपन इज दैट Q2 फंक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, Q2 फंक्शन में जैसे यहाँ पे 50 गिवन है ऊपर, इसी तरह से Q2 में कोई कांस्टेंट होगा माइनस वहां पे P1 था, बिकॉज वहां पे dQ1 बाई dP1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हम -6P2 लेंगे लाइकवाइज। ठीक है, तो हम Q2 का वैल्यू डाल देते हैं 40, ये जो कांस्टेंट है इसको ऐसे रहने देते हैं, और इसमें P2 का वैल्यू डाल देते हैं 10। सो ये कांस्टेंट है, इट विल कम आउट एज 100 अगर आप इसको हम वहां पे दूसरे साइड इक्वेशन के ले जाते हैं। सो थ्रू दिस Q2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस 6P2, कांस्टेंट 100 है, so Q2 is 100 minus 6P2. So the demand function for Q2 has come out. So this is the answer. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये स्टेप, आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना और जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी उसको देख लेना, इट विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। आई डिड दिस क्वेश्चन डेलिबरेटली बिकॉज आई वांट यू टू एनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आईएएस का क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो आप वहां तो कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? हमें निकालना था डिमांड फंक्शन फॉर Q2 और वो निकल चुका है यहाँ पे। फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अगर समझ नहीं आया है तो, लास्ट स्टेप थोड़ा ट्रिकी था, एंड इफ कोई प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक द डाउट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट विजिबल? इज एवरीथिंग विजिबल टू यू? यस, ऑल क्लियर दिलखुश? ठीक है, ओके गुड। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? फटाफट से हम इनकम इलास्टिसिटी का भी देख लेते हैं, और एक आध छोटा बहुत न्यूमेरिकल में लेके आई हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फटाफट से एक बार कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे जो हम इनकम है ना, वो हम मनी इनकम की बात कर रहे हैं, रियल इनकम की नहीं। ठीक है, रियल इनकम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, दैट कॉन्सेप्ट विल कम व्हेन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स इन डिफरेंट गुड्स। एक जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, वो हम सेपरेट क्लास में लेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ओके, Navneet sir was telling me that a lot of students are confused in this topic. We will take that in a separate class. For now, pay attention to whatever that I'm teaching you over here. So this is NY, that is the income elasticity of demand can be written as dx by dm into m by x. ठीक है, जैसे हमने अभी डिमांड फंक्शन का प्राइस इलास्टिसिटी निकाला था, उसी तरह से ये एक डिमांड फंक्शन है। ओके, इसका हमें इनकम इलास्टिसिटी निकालना है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? I'm quickly going to show you the solution. The income elasticity is, don't get confused when you see such kind of things. You are acquainted to see number, मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप acquainted होंगे, बट इस टाइप का भी पूछ सकता है टू कंफ्यूज यू। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, everything will become easy after that. So this is dx upon dm into m by x. So dx by dm क्या है आपका? हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है, सो दिस विल बी 1/2px। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे m कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल्ड, सो दिस इज 1। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हो जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब क्या है? अगर इनकम 1% से इंक्रीज हो रहा है, सो डिमांड फॉर गुड एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1%। ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फटाफट से कर लेते हैं, वील डू अ न्यूमेरिकल ऑन दैट। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ठीक है, इसको हम NXY भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज परसेंटेज चेंज, ये जो ट्राइंगल है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी,
सो आई एम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट सो दैट आपको एग्जाम के लिए घर पे जाके ज्यादा पढ़ना ना पड़े, यहीं पे आपका हो जाए जो न्यूमेरिकल्स वाला है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, दैट इज dx अपॉन dpy, बिकॉज ये हम दूसरे क्वांटिटी के प्राइस के रेस्पेक्ट से कर रहे हैं, एंड दिस इज py अपॉन x, ठीक है। सो ये क्रॉस प्राइस ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है तो क्या होता है। कैन यू प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। दोनों गुड्स क्या होते हैं तब। 3 केसेस फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? What happens when cross price elasticity of demand is negative? Positive or zero? हाँ, very good. It is complement. कुलदीप कुमार, सब्सटीट्यूट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पॉजिटिव होता है तो सब्सटीट्यूट होता है, और अगर जीरो होता है तो अनरिलेटेड होता है। अनरिलेटेड का एग्जाम्पल क्या होता है, हम पेन को रसगुल्ला के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। सो पेन एक अनरिलेटेड गुड है, पेन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, रसगुल्ला का उससे कोई रिलेशन है क्या? हाँ, is there a relationship between pen and rasgulla? If the price of pen rises, then rasgulla has nothing to do with that. So they are unrelated goods. So when nxy is 0, then it is referred as unrelated good. Okay, and this also we can write it in this way: if dx by dpy is negative, then it is complementary. And if ये negative की तरफ आ जाता है, and if dx by dpy is positive, then there is, यहाँ पे है perfect complement है ये, and this is perfect substitute. Okay, dx by dy is greater than 0. ये important था रिवाइज करने के लिए। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पॉजिटिव होता है, एन वाई जब पॉजिटिव होता है, देन वो नॉर्मल गुड होता है। अच्छा, अभी इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव में तो वो क्या बोलते हैं इंफीरियर होता है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो आएगा रियल इनकम इफेक्ट में, जो हम सेपरेट क्लास में कवर करेंगे। वो जो एक टेबल होता है ना जहां पे सब हम कंपेयर करते हैं, इन विच वी कंपेयर, दैट इज रियल इनकम इफेक्ट, एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। So don't get confused with that. We'll cover that in a separate class. Over here, just focus on this, because in most of the questions, in some of the questions, they can give you the demand function and they can ask you which kind of good is it. So when they are asking you which kind of good it is, whether normal or inferior, then you are supposed to find the the income elasticity of demand. And through that only we'll come to know whether it's normal or inferior. If it's positive, then it will be normal. But if it's negative, then it will be inferior. ठीक है। और जो हमने ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले पढ़ा था, उसमें क्या होता है, इफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब ये है कि ये जिफन गुड है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये नॉर्मल या इंफीरियर हो सकता है, और इंफीरियर हो सकता है, ठीक है। But to know how is it normal or inferior, we'll have to go to income effect to check it. Okay, ये चीज नोट्स में है, मैं आपको दे दूंगी, आप समझ लेना उसको अच्छे से। इज इट क्लियर टिल हियर? अगर आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन होगा और पूछा जाएगा कि वेदर द गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है, ऑल गुड्स, ऑल जिफन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट जिफन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ये आपको पता होना चाहिए। All given goods are inferior, but all inferior goods are not given. Is this statement true or false? This is true. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम एक फटाफट से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एंड देन आई थिंक वील कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज टाइम काफी हो चुका है। Okay, so I want active participation from all of you. Here is a demand function. This was asked in the UGC NET exam recently. So I've got you questions from all realms of economics. Okay. This is 100 minus 2PA plus 0.2Y plus 0.3 PB. Okay. We have to find the cross price elasticity of demand. I think I've written the question over here. We'll not waste time. Okay. यहाँ पे question है. Is it visible to all of you? ये question है. देख लीजिए एक बार if it's visible. Is it visible? Shall we start with the numerical? Just read it once. हाँ, तो यहाँ पे क्या given है? यहाँ पे आपका क्या given है? We have a demand function. QA is equals to 100 minus 2PA plus 0.2Y. ये Y है, ठीक है? Y है ये plus 0.3 PB. Find the cross price elasticity of demand at, this is given, price is PA is 6, Y is 500, PB is 10. The options are given over here. So you have to find the correct answer. I'm giving you 2 minutes time. Quickly solve the numerical and then I'll solve it for you so that you can tally the answer. Okay? Fatafat, 2 minutes. And the time starts now. I want you to solve this. I've given you the formula right now. All the values are given here. Solve it. हुआ आपका? आंसर क्या निकला? Anyone has solved this question? You have to find the cross price elasticity of demand. मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है? ए और बी है ना, तो हमें NAB लिख लेते हैं। DPB, ठीक है, इंटू PB अपॉन QA। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, फिर आपका आंसर के साथ हम टैली कर लेंगे, ठीक है? आर यू गाइज एक्टिव? ओके, सो विल डू इट, विल डू दिस क्वेश्चंस क्विकली। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? DQA, वहां पे हमने लिखा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अभी तो हमने किया है dx अपॉन DPY इंटू PY अपॉन PX। यहाँ पे dx के वजह क्या है? DQA है, ये DPB है। दिस इज हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कर रहे हैं, तो या प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज PB, DQA अपॉन DPB इंटू PB अपॉन QA, ठीक है? तो हम फटाफट से फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी विल फाइंड आउट DQA बाई DPB, ठीक है? तो यहाँ पे 100 माइनस 2PA प्लस 0.2। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट चांदनी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम इसको आंसर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम एक बार मैं इधर फंक्शन को लिख देती हूँ, QA इज 100 माइनस 2PA प्लस 0.2Y प्लस 0.3 PB, ओके? DQA by DPB
हमें निकालना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू पी बी, तो क्या होगा, 100 वाला जो है वो कांस्टेंट है, 0 रहेगा। ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू पी बी, सो अदर टर्म्स विल बी कांस्टेंट, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। यहाँ पे क्या होगा, 0.3, ठीक है। सो दिस इज 0.3। अब पीबी ऑलरेडी गिवन है, पीबी 10 है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्यूए गिवन है, क्यूए आपका गिवन है नहीं है, बट हमें वैल्यूज गिवन है तो हम क्यूए निकाल लेंगे। 0.3 इज रॉन्ग सुभस्मिता, आप एक बार चेक करिए क्या गलत किया आपने। क्यूए का वैल्यू हम निकालेंगे 100 माइनस 2 इंटू 6, पी ए इज 6 ओवर हियर, ठीक है, प्लस 0.2 इंटू वाई क्या है, वाई इज 500, ओके, प्लस 0.3 इंटू पीबी क्या है, पीबी इज 10, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वैल्यू 100 माइनस 12 प्लस 100 प्लस 3, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन का 0.3 है सुभस्मिता, ओके ओके फाइन, आई गॉट इट, ओके ओके, माय बैड, सॉरी। चलो सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज क्यू ए इज 191, क्यू ए निकल गया आपका 191, ठीक है, क्यू ए 191 निकल गया, पीबी गिवन है 10, डी क्यू ए बाई डी पी बी निकल गया है विच इज 0.3, सो पुट द वैल्यू ओवर हियर, डी क्यू ए बाई डी पी पी क्या निकला 0.3, ठीक है, दिस इज 0.3, विल पुट इट ओवर हियर। 0.3 पीबी का वैल्यू 10 है और क्यू ए का वैल्यू अभी हमने निकाला 100 है, सॉरी 191 है। सो ये रफली आपका 3/191, 3/191 क्या है, 0.016, रफली इतने के अराउंड आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा 0.016, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ 0.015 कुछ राउंड ऑफ करोगे तो 0.016 निकलेगा, विच इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन ओवर हियर गिवन हियर, ठीक है। सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आज हम यहीं पे एंड करेंगे सेशन, ओके। अच्छा अच्छा, एक और छोटा सा हम पॉइंट कर लेते हैं इलास्टिसिटी में, देन विल वाइंड अप। मैंने एक आपको बताया था ना मार्जिनल, ओके, मैं आपको पूछती हूँ इसका आंसर क्या होगा। एमपीसी 0.5 है, एपीसी 0.25 है, मुझे इनकम इलास्टिसिटी फटाफट से निकाल के बताओ, इनकम इलास्टिसिटी क्या है। एमपीसी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। फटाफट से मुझे आप इनकम इलास्टिसिटी निकाल के दिखाओ। आई जस्ट गेव यू अ फॉर्मूला इन द बिगिनिंग, सो यूज दैट, a small hint from my side. What will be the income elasticity of demand through the given information? Any answer, students? Very good, Chandni. ये बहुत इजी टॉपिक है, बट इनकम इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट या 2, आई टोल्ड यू elasticity can also be written as marginal change upon average change over here, उसी को मैंने यहाँ पे पुट किया है। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड सोनल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो दिस इज मार्जिनल चेंज अपॉन द एवरेज चेंज, मार्जिनल चेंज, तो यहाँ पे मार्जिनल चेंज एमपीसी है, एमपीसी को हम कैसे लिखते थे, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और यहाँ पे एपीसी है, हम लिखते थे इसको सी बाय वाई, ये एवरेज है। सो 0.50 डिवाइडेड बाय 0.25, दिस इज इक्वल्स टू 2, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी प्लस इनकम इलास्टिसिटी, इसका जो सम है ना वो 0 के इक्विवेलेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज देके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस,
Okay. Gross price elasticity plus own price elasticity plus cross price elasticity plus income elasticity is 0. तो आपको अगर वैल्यूज देता है ओन प्राइस इलास्टिसिटी का, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का और बोलता है इनकम इलास्टिसिटी निकालो, सो यू कैन फाइंड इट थ्रू दिस फॉर्मूला. ओके, इज इट क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स? जस्ट राइट दिस डाउन, इंपॉर्टेंट है और इजी है काफी. ये राइट कर लीजिए, लिख लीजिए. And then we'll wind up with the class today. We'll wind up with the session today. Okay, Sonal. Okay, Rajni. So, how was today's session? Was it fruitful? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम यूटिलिटी फंक्शंस जो है उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे. यूटिलिटी फंक्शंस जैसे आपके कॉप डगलस हो जाता है, आपको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, वेल बिहेव्ड, उसमें हम ऑप्टिमल बंडल कैसे निकालते हैं, तो उस पे हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे. एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स एंड वील ऑल्सो सी कि ग्राफ का शेप कैसे होता है जब मिनिमम फंक्शन होता है, जब मैक्सिमम फंक्शन होता है. सो वी विल डू ऑल ऑफ दैट इन द next class. Lagrange, okay, we'll also do Lagrange and all that. We'll do, there are a lot of things. Then we will also do indirect utility functions. We'll do questions on in the coming classes. There is a lot to do. Chandni Singla, can you please take class daily? Okay, we will take classes like week में दो बार around लेंगे, 2 to 3 times. Navneet sir will also be covering a few classes on statistics and all. So everything will be covered. Don't worry, Chandni. And do self-revision. A lot of revision has to be done. We are going to help you in revising the important topics so that you don't have to go through that topic again and again. Class में अगर कर लोगे तो हो जाएगा. अच्छा, what आपका when will be the next class? It will be updated to you in the Telegram group by Navneet sir. So we'll let you know in that. Okay. Okay. So how was today's class? I want your feedback. अगर कुछ आप चाहते हैं और कुछ ऐड हो, so we can do that from the next class. How was today's class? Numericals के level कैसे थे? Please share. Please feel free to share in the comment box. How was today's class? Numerical का level कैसा था? Yes. Solo models, Krishna, solo models के सारे notes have been updated. And national income ka, it will be updated today because the topic got completed today. And the other things will also be. Solo model ke, there were, I think, 3 notes. All of that has been uploaded. Okay, you just check in the app once. Okay. So I think you have benefited from today's class. And we'll keep revising all the topics like this. Okay. और आपके जो भी important topics है वो cover होते रहेगा. The notes will be uploaded. Krishna, you just check, okay? And today the national income note will also be updated. So just revise all the concepts, study well, take care of your health, and all the very best to all of you. May you all come out with flying colors, okay? Goodbye. Take care.